Guys, we are going to understand point potential method here in this video. So here is a circle. We are having couple of resistance in between. The resistance in this circuit to be same everywhere. Let the resistance be considering R, here also R, and similarly everywhere. So the potential difference generated will be B everywhere, and the resistance everywhere in the circuit seems same. So you have to understand that this is B and this is A. So the potential difference will be same everywhere because we have same resistance. Like we can take it as here AB. Now the formula for calculating parallel is, as you all know, till it goes to be R or N. This is basically R equivalent. So need to calculate RAB. Calculating RAB. This is 1 by RAB. This is equal to 6R. And this is RAB. Now we are going to deal another questions. Example where there is battery connected between A and B. Here is a 5 ohm resistor, here is a 10 ohm resistance, here is a 20 ohm resistance, here is a 30 ohm resistance, here is a 10 ohm resistance, and here is a 15 ohm resistance, and here is a 30 ohm resistance in between it. And as you can see here, we need to find RAB. So how we can do this question is, first considering this to be a series, then 30 we can have 15, then we can write 15 of this combination, then here also 30, and here also 30 ohm, so here also 15, similarly here also 15, so 15, 15, 15, 10, 5. Like similarly we see here is 30 ohm resistance, here is 30 ohm resistance, here is 30 ohm resistance, and here is 30 ohm resistance. So we can do it like this. A is a 5 ohm resistance, here are 30 ohm resistance, and here is a 10 ohm resistance. Okay, we are basically converting, sorry I told you wrong besides this time. So 10 ohm 20 ohm gives you resistance 30 ohm, then 723 gives you 30 ohm, this also gives you 30 ohm. So we can all have them in a particular series, and these are same potential. This will not create any difference because there is no resistance between them. So the potential here would be same here, the potential here would be same here. So we can just take the basics to be correct. Here the potential, and here the potential, and here the potential will remain same. Understanding my point? Okay, so we have done a beautiful question. Now moving forward to question number 2. Before doing question number 2, we will do one more topic, which is path symmetry. Let's have a look at this topic. For suppose we have to calculate here also RAB. So हम यहाँ पे कॉशिंग थ्योरी समझेंगे. तो करेंगे क्या, ये देखिए आप, एक क्यूबॉइड बना लेते हैं पहले, क्योंकि ये पाथ सिमेट्री वाला टॉपिक जैसा आपने कैपेसिटेंस में ही पढ़ा होगा. अगर आपने कैपेसिटेंस चैप्टर डी में पढ़ा है, इसमें ही पाथ सिमेट्री का टॉपिक था, तो वही हम वापस स्टडी करेंगे अभी. तो यहाँ पे ए मान लो और यहाँ पे बी मान लो. यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 1 ओम का, 1 ओम का, यहाँ पर 1 ओम का, यहाँ पर 1 ओम का, 1 ओम का. सब जगह मान लो मतलब रेजिस्टेंस सेम ही है हर जगह.
हमको समझ लो कैलकुलेट करना है। और यहाँ एक बैटरी तो है ही, इसे पॉजिटिव मान लो और इसे नेगेटिव मान लो। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। देखो ये हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1 2 1 2 1, यहाँ से 2, यहाँ का तो बी ही हो जाएगा और यहाँ का भी मतलब ए ही रहेगा। यहाँ से 1 1, यहाँ 2, देखो यहाँ फिर 1 2, या फिर 2 1, फिर यहाँ 1 2 1 2 1। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का ही पोटेंशियल होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ भी 1 2 और यहाँ का भी मान लेते हैं V2 होगा, तो यहाँ भी V2 ही होगा। अब आगे चलते हैं, 1 2 1 2 1, यहाँ भी 2 1 होगा, तो यहाँ भी V आ जाएगा पोटेंशियल। यहाँ है वो 2 1, यहाँ भी V, यहाँ भी V हो गया, यहाँ भी V हो गया, यहाँ V, यहाँ V2, यहाँ 1 1 का अलग है, और यहाँ भी 1 2 है इसमें, यहाँ भी आपका V2 आ गया, V2 V2 V2। ठीक है, V2 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 V। अब हम मान लेते हैं, यहाँ एक V ले लेते हैं, यहाँ एक V2 ले लेते हैं, यहाँ एक A ले लेते हैं, यहाँ एक B ले लेते हैं। हाँ, अब यहाँ हम क्या करते हैं, A से V2 कनेक्ट हो रहा है पहले, तो इसको ये मान लेते हैं। A से V2 ये रहा एक, A से V2 ये एक, ये रहा A से V2, ये एक A से V2 ये रहा। ठीक है, एक A से V2 यहाँ भी रहा, तो 3 हो गए A से V2। ठीक है, फिर हम V2 से V देखें, V2 से V ये हो गया, V2 से V ये हो गया, 2 यहाँ निकल गए दिख रहे हैं, 3 यहाँ हो गए, यहाँ 4 देख रहे हो, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बना देते हैं, 1 2 3 4, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ भी V, यहाँ B है। अब V और B में देखते हैं रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 2 और 3। दिख रहा है जैसे आपको, तो रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ V से V2 में एक और है बीच में, यहाँ भी V से V2 में एक और है, मतलब 1 2 3 4 6 होंगे शायद V2, और उसमें आप जैसा कि आप देख सकते हैं 6 हैं, तो अपन 6 बना लेते हैं V2 और V में। V2 से V में काउंट करता हूँ एक बार, ये देखो, बार थोड़ा पेन डिफरेंट रहता हूँ, या फिर नहीं मिल रहा है तो सही करा देता हूँ। चलो, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये वाला आपका 2 है। ठीक है, और ये आपका 3 है, ये आपका 4 है ना, का 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है। ये वाला दिखा नहीं था हमें, 1 2। ठीक है, 1 2 V2 से V है, देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4,
ठीक है, ये 5, ये 6। अब आ गया समझ में। अब अपन को रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना था। तो यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस होगा इन तीनों का, वो हो जाएगा R/3। यहाँ का जो टोटल होगा वो हो जाएगा R/6, और यहाँ का जो टोटल होगा वो भी हो जाएगा R/3। कैसे होगा वो बताऊँ। ये पैरेलल में है तीनों, तो फॉर्मूला लगा दो। इसको यहाँ का रेजिस्टेंस R' मान लो, R' का रेजिस्टेंस निकालो 1/R। ये भी यहाँ, सो R' की वैल्यू आ जाएगी R/3। सिमिलरली बाकियों के भी निकाल लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और मतलब ये V2 था ना आपका, ये V था, ये V था, है ना। अब क्या करो, तीनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है R/3 + R/3 + R/6। तो ये 2R/3 हो जाएगा, ये R/6 हो जाएगा। तो अब LCM ले लेते हैं, मतलब ले लेना हो तो आप लोग, तो आंसर फाइनली आपका ही आ जाएगा। यही है ना आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, आगे वाले पेज पे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक और हम क्यूबॉइड बनाते हैं एक बार। मतलब अभी सारे क्वेश्चन 5 सिमेट्री वाले कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली क्यूबॉइड के क्वेश्चन आते हैं कि मेंस में और एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के, मेंस से कंपेरिजन, ठीक है।